So once again, another lecture of limit. So in last lecture we did evaluation of of limit of exponential functions. Exponential functions. Now when we did this, in this we used the result. Which results did we use? The result was a raised to x minus 1 upon x. When x tends to 0, the limiting value is equal to log of a to the base e. And when this a was replaced by e, so it became e raised to x minus 1 upon x. Limiting value for x equals to 0 will be log of e. You are replacing a by e. And as you know, the base is always e. Log of e to the base e is 1. So these two results we used and we solved problems. So if you remember, along with these two results, I had also given you one result, and that one was if the function is 1 plus x raised to 1 upon x. If the function is 1 plus x, what does x represent here? What does x represent here? X represents the variable. So if the function is 1 plus x raised to 1 upon x and x is approaching 0, then the limit of this will be equal to e. What is e? E is an irrational number, which I have already explained. So in last lecture we solved problems based on these two. Now in today's lecture we will solve problem based on this. In today's lecture we will solve problems based on this result. Which one? 1 plus x raised to 1 upon x. When x tends to 0, limit is 1. And for this result, what was the condition? The condition was the base. See, this is base. The base should always be in the form 1 plus a variable. It should be in the form 1 plus a variable. And what should the power be? The power should be reciprocal of this variable. And if this variable happens to be tending to 0, then you can write the limit as e. So I give you an example here. Suppose I have 1 plus sine x and raised to 1 upon sine x. Now after plus, what do I have? After plus sign, I have here sine x. Like as you have x here, I have sine x here, right? So for this result, in order this result could be used, I should be having, see, if it is x here, then the power is 1 upon x. So I should be having 1 upon sine x. I do have that. Very good. So far, so good. But now, the next thing is, when you have 1 plus x, then this x should tend to 0. So here, what should I have? I should have sine x tends to 0. Now, suppose instead of sine x tending to 0, they give you x tends to 0. So the question is, will this be equal to e? Can I write e? Answer is yes, you can write e. Why? Because when x tends to 0, remember, sin x will automatically tend to 0. अगर x 0 के पास जा रहा है तो sin x 0 के पास से ही जाएगा, क्योंकि sin 0 हो जाएगा ना उधर. sin 0 x 0 के पास जा रहा है, तो इसका मतलब sin x जो है वो sin 0 के पास जा रहा है, और sin 0 तो 0 ही होता है, तो ये 0 के पास जा रहा है. तो इस तरह से आज हम लोग इस पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ये भी एक तरह का एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है.
तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन problems based on result 1 plus x raised to 1 upon x when x tends to 0 limit equals to e. ओके, तो मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ यहाँ पे और वो है प्रॉब्लम नंबर 3. So in exercise 7.6, it is exercise 7.6, we are into 7.6 and there it is problem number 2, and for 2 exercise 7.6 second ka third. Okay, so what we have to do, evaluate limit x tends to 0, x tends to 0. Here you have 5 plus 3x, sorry, you have 5x plus 3 upon 3 minus 2x, the whole raised to 2 upon x. Okay. So see, what do I do in the very next step? In the very next step, see what I write. I'll be writing, पहले तो इसको मैं लिखता हूँ let L equals to this. Next step में मैं लिखता हूँ therefore L is equal to limit x tends to 0. देखो ये 5x plus 3 है, इसको मैं 3 plus 5x लिख सकता हूँ, definitely 3 plus 5x 3 plus 5x upon 3 minus 2x and the whole raised to 2 upon x. ठीक है, the whole raised to 2 upon x. whole raised to 2 upon x. अब देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे ये न्यूमरेटर है ना, सही है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है. मैं न्यूमरेटर में से 3 कॉमन लेता हूँ और डिनोमिनेटर में से भी 3 कॉमन लेता हूँ. ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से मैं 3 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0. जब आप 3 कॉमन लोगे यहाँ से तो आपको मिलेगा 1 plus 5x upon 3. 1 plus 5x upon 3. सही है, क्या मिला आपको 1 plus 5x upon 3. और नीचे आपको यहाँ पे जब आप 3 कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा 1 minus 2x upon 3 और ये पूरे का पावर है 2 upon x. देखो अगर आप मुझसे अभी पूछते हो कि सर आपने क्यों कॉमन लिया, आपने कॉमन क्यों लिया, अगर आप मुझसे पूछते हो तो सीधा सिंपल सा एक इसका आंसर होगा, कॉमन इसलिए लिया क्योंकि मुझे 1 चाहिए, 1. अरे भाई ये 1 तो चाहिए ना, रिजल्ट अगर यूज करना है आपको, अगर आपको ये रिजल्ट यूज करना है तो उस रिजल्ट जैसा दिखना चाहिए ना. तो सीधी सी बात है इधर क्या, आपको 1 plus x 1 दिखना चाहिए, ये वाला 1 तो था ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ अलग ही आ रहा था. तो जब मैंने देखा कि ऊपर 3 है और नीचे भी 3 है तो मैंने 3 कॉमन ले लिया ऊपर नीचे से, तो देखो मुझे 1 मिल गया, मतलब कम से कम 1 प्लस तो मिल रहा है ना. ठीक है, अब आप क्या बोलेंगे कि अब आप बोल सकते हैं कि सर 1 प्लस मिल रहा है लेकिन यहाँ पे तो नीचे 1 माइनस है, टेंशन मत लो वो भी हो जाएगा. देखो पहले ये 3 और ये 3 गया, अभी नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करता हूँ. नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा therefore L equals to limit x tends to 0 1 plus
5x upon 3, 1 plus 5x upon 3 divided by 1 plus minus 2x upon 3 and the whole raised to 2 by x. 1 plus 5x upon 3. अच्छा देखो यहाँ पे मुझे 1 प्लस ही चाहिए, ये 1 बेस 1 प्लस ही होना चाहिए, तो प्लस तो नहीं था, तो मैंने क्या किया, मैंने वो माइनस को मैंने लिखा प्लस ऑफ माइनस. ठीक है, अब आगे देख. अब जैसा कि हमें मालूम है, अगर मेरे पास a अपॉन बी रेज टू m है, तो मैं उसे a रेज टू m अपॉन b रेज टू m लिख सकता हूँ. करेक्ट. तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिखूंगा सेपरेट पावर लिखूंगा. तो यहाँ पे मुझे मिलेगा therefore L equals to limit x tends to 0 1 plus 5x upon 3 raised to 2 by x and 1 plus minus 2x upon 3 raised to 2 by x. क्या किया मैंने ऊपर और नीचे दोनों का ये पावर लिख दिया 2 by x. समझ में आ गया ना? यस. देखो, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे मैं इस रिजल्ट के पास आ रहा हूँ. ध्यान से देखो, कौन से रिजल्ट के पास, कौन से रिजल्ट के पास जा रहा हूँ, इस रिजल्ट के पास जा रहा हूँ धीरे धीरे. देखो बेस क्या होना चाहिए, 1 प्लस एक्स होना चाहिए, तो 1 प्लस दिख रहा है ना, 1 प्लस तो आ गया. अच्छा, अभी 1 प्लस एक्स, जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे मेरे पास में 5x प्लस 3 है और माइनस 2x प्लस 3 है. ठीक है, ओके. अभी अगर 1 प्लस तुमको मिल गया तो उसका पावर होना चाहिए. पावर क्या होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए, अगर ये तुम्हारे पास 5x प्लस 3 है तो पावर इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए. ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 3 अपॉन 5x. क्या होना चाहिए, 3 अपॉन 5x. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए इसका रेसिप्रोकल, मतलब 3 अपॉन 5x. और ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए इसका रेसिप्रोकल, मतलब 3 अपॉन माइनस 2x. देखो यहाँ पे अगर x है तो इधर क्या है, 1 अपॉन x, उसका रेसिप्रोकल है ना, 1 अपॉन किया मतलब रेसिप्रोकल. ठीक है, तो अभी आगे का जो होगा वो और इंटरेस्टिंग होगा, आगे का और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा. तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग ये वाला पार्ट कॉपी कर लो, ये वाला पार्ट, सो दैट आई कैन सॉल्व इट हियर ओनली. मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ. ओके, तो वीडियो पॉज करो और इसको जल्दी से इसको इतना कॉपी कर लो फटाफट. तो यहाँ पे 1 प्लस 5x अपॉन 3 रेज टू 2 बाई एक्स है. ठीक है, 1 प्लस 5x अपॉन 3 रेज टू 2 बाई एक्स. तो मैंने लिख दिया 1 प्लस 5x अपॉन 3 रेज टू 2 बाई एक्स. देखो यहाँ पे मुझे लिखना है 2 बाई एक्स. 2 बाई एक्स को देखो मैं कैसे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ 1 अपॉन एक्स इंटू 2. एक ही बात है. और डिनोमिनेटर में भी पावर क्या है, 2 अपॉन एक्स, तो मैं उसको लिखता हूँ 1 अपॉन एक्स और इधर 2 मल्टीप्लाई करता हूँ. ठीक है ना, एक ही बात है. अब देखो यहाँ पर क्या है, ये है 5x अपॉन 3, तो मुझे पावर में चाहिए 3 अपॉन 5x. देखो मैं कैसे 3 लेके आता हूँ, मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो अगर 3 मल्टीप्लाई किया तो 3 से डिवाइड कर दिया. ओके, अगर तुमने चेंज किया तो काउंटर चेंज कर दिया. अच्छा, 3 अपॉन 5x चाहिए, तो तुम यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करो. यहाँ पे अगर 5 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो तुम यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये चेंज हुआ तो ये काउंटर चेंज. अच्छा, अब देखो यहाँ पे तुम्हें चाहिए, यहाँ पे ये है तुम्हारा माइनस 2x अपॉन 3 है, तो इसका इसका पावर क्या होना चाहिए, 3 अपॉन माइनस 2x, उसका रेसिप्रोकल. तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 3 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दिया. और यहाँ पे मुझे माइनस 2x चाहिए, तो मैं माइनस 2x यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस 2 मल्टीप्लाई किया. तो अगर यहाँ पे माइनस 2 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी माइनस 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 अपॉन माइनस 2x हो गया. तो नेक्स्ट स्टेप में अब वो रिजल्ट पूरा सेट हो गया. देखो देयरफॉर L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, और देखो क्या मिलेगा आपको मिलेगा 1 प्लस 5x अपॉन 3
1 plus 5x upon 3 raised to 3 upon 5x, ओके, इंटू ये वाला पार्ट क्या है, 10/3, 10/3, ओके, इंटू 10/3। और यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 प्लस -2x/3 रेज टू 3 upon -2x, 3 upon -2x इंटू -4/3, -4/3, ठीक है ना, ये हो गया आपका -4/3। अब वो रिजल्ट यूज करेंगे जो हम लोग यूज करना चाहते थे। कौन सा रिजल्ट, देखो, यूजिंग, अब मैं यहां पर लिखूंगा, क्या लिखूंगा, यूजिंग लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0, 1 प्लस अल्फा रेज टू 1 अपॉन अल्फा, एक्स की जगह पे अल्फा डाल दिया, इक्वल्स टू ई। ये रिजल्ट मैं यूज कर रहा हूं। क्या मैं यूज कर सकता हूं, अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो 1 प्लस अल्फा अगर है तो 1 अपॉन अल्फा होना चाहिए, तो 1 प्लस 2x/3 है, 1 प्लस 5x/3 है, तो यहाँ पे 3 अपॉन 5x है, और अल्फा टेंड्स टू 0 होना चाहिए यहाँ पे। ओ, तो क्या करूंगा, देखो यहाँ पे अल्फा टेंड्स टू 0 होना चाहिए, मतलब जो प्लस साइन के बाद में है वो टेंड्स टू 0 होना चाहिए, ऐसा थियरी बोलता है। तो यहाँ पे प्लस साइन के बाद क्या है, 5x/3, तो 5x/3 टेंड्स टू 0 होना चाहिए, तो ये पूरा ई होगा, ये पूरा क्या होगा, ई होगा, ई। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन ये है कि उन लोगों ने क्या टेंड्स टू 0 दिया है, उन लोगों ने x टेंड्स टू 0 दिया है, तो इसका मतलब ये भी टेंड्स टू 0 होगा। क्यों, क्योंकि x न्यूमरेटर में है ना। तुम सोचो 5x/3 अगर ये 0 के पास जा रहा है तो 5 इंटू 0 क्या होगा, 0 ही होगा, तो 0/3 0 के पास ही जा रहा है। क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया सर, है ना, ऐसा मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अब मैं लिखूंगा सिंस एक्सटेंड, ये वाला पार्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सिंस एक्सटेंड्स टू 0, ये यहाँ पे लिखना पड़ता है, since x tends to 0, therefore 5x/3 tends to 0 and -2x/3, -2x/3 tends to 0, therefore using this limit। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैंने लिखना था जो कि मैंने नहीं लिखा, अब मैं उसको, देखो ये जो लिमिट है ना, ये लिमिट दोनों के लिए आपको लिखना होगा, लिमिट सेपरेट, एक लिमिट में नहीं चलेगा, लिमिट यहाँ भी लिखना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, और लिमिट यहाँ भी लिखना होगा, दोनों के लिए लिमिट लिखना। ओके, तो अब क्या होगा बच्चों, अब ये देखो ये पूरा e हो गया, दिस इज e, और ये जो है इतना ये पार्ट e हो गया। So what we get, therefore we get, using this we get, you will get here L equals to, देखो ये पार्ट E हो गया, फुल E, तो E रेज टू 10/3 क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बोलो, E रेज टू 10/3, E रेज टू 10/3 upon E रेज टू -4/3, that is L equals to E रेज टू 10/3 into e raised to 4/3, that is e raised to 14/3. What do we get? We get e raised to 14/3. This is answer. Okay, I hope you all have understood. You should once again watch the whole solution and write it, practice it. Okay, write it, practice it. So now let's take another question. I write here. I take another question which is number 6 from second, and I want that 6th यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सेकेंड, देखो सेकेंड का थर्ड मैंने अभी सॉल्व किया, सेकेंड का थर्ड ये यहाँ से स्टार्ट होके और ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया सेकेंड का।
थर्ड। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सेकंड का सिक्स्थ आपको दे रहा हूं, आप लोग ये ट्राई करेंगे। इवैल्यूएट, ये क्यों मैं दे रहा हूं, क्योंकि ये एकदम जैसे आपने ये किया है अभी वैसे ही यहाँ पे करना है। तो ये सब आप करिए और लेट्स सी हाउ मच यू आर गेटिंग। लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो 5 + 7x अपॉन 5 - 3x रेज टू 1/3x। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये जो है ये एक लिमिट प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड करेंगे हम लोग कि आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर आपने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप नहीं चेक किया। हम लोग इवैल्यूएट करने का मतलब क्या है, इवैल्यूएट करने का मतलब है जब x 0 के पास जा रहा है, हम हमेशा खुद को क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन करते हैं, अगर x 0 के पास जा रहा है तो ये फंक्शन ऑफ x जो है वो कौन से नंबर के पास जा रहा है, ये हमारा खुद से क्वेश्चन होता है। ये फंक्शन ऑफ x कौन से नंबर के पास जा रहा है, तो ये फंक्शन ऑफ x कहाँ जा रहा है ये चेक करते हैं। ओके, लास्ट प्रॉब्लम में नहीं किया था, कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रॉब्लम में चेक करते हैं। तो देखो x जब ही x 0 के पास जा रहा है तो ये 0 के पास जा रहा है, तो ये 7 × 0 क्या हो गया, 7 × 0 हो गया 0। ओके, तो न्यूमरेटर का क्या होगा, न्यूमरेटर हो जाएगा 5 + 0 के पास, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ये 0 के पास जा रहा है, सो 5 - 0 के पास, क्योंकि 3 × 0 के पास विल बी 0 के पास, रेज टू। देखो अभी रेज टू क्या होगा, ध्यान से देखो, ये 0 के पास जाएगा तो मतलब 1/0 के पास। अब 1/0 के पास का क्या मतलब है, देखो अगर कोई नंबर 0 के पास जा रहा है और वो डिनोमिनेटर में है तो इसका मतलब वो जो फ्रैक्शन है वो इंफिनिटी के पास जाएगा। तो ये कहां पे जा रहा है, ये इंफिनिटी के पास। तो देखो अभी 5 + 0 के पास, इसका मतलब 5 के पास, और ये 5 - 0 के पास मतलब ये भी 5 के पास। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 में थोड़ा सा ऐड हो रहा है नंबर और यहाँ पे 5 में थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन दोनों भी 5 के पास ही हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंफिनिटी के पास। तो ये देखो 5, ये 5 ऊपर और ये, तो ये इसका मतलब ये 1 के पास आ रहा है। समझ में आया क्या, ये 1 के पास, और यहाँ पे क्या है, ये इंफिनिटी है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है 1 रेज टू इंफिनिटी, 1 रेज टू इंफिनिटी मिल रहा है। और याद रखना ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, 1 रेज टू इंफिनिटी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। 1 रेज टू इंफिनिटी कौन सा फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ओके, 1 रेज टू इंफिनिटी अगर मिला तो समझ जाना आंसर, अगर आपको ऐसा चेक करने पे 1 रेज टू इंफिनिटी मिल रहा है इसका मतलब आंसर आप वैसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो अब तक टोटल कितने इनडिटर्मिनेट फॉर्म देख लिए आपने। सबसे पहले आपने देखा 0/0, सबसे पहले आपने देखा 0/0, फिर आपने देखा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, फिर आपने देखा इंफिनिटी/इंफिनिटी, और अब आप देख रहे हैं 1 रेज टू इंफिनिटी। तो ये 4 इनडिटर्मिनेट फॉर्म आप लोग देख चुके हैं अब तक। ठीक है, ओके, तो ये हो गया इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्योंकि मुझे पता चल गया है कि ये इस तरह से सॉल्व नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, तो मेरे पास 2 तरीका है जो कि मैं हमेशा बोलता हूं, या तो आप फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर 0 कैंसिल करेंगे और नहीं तो आप रिजल्ट यूज करेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे तो 0 रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कैंसिल होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिजल्ट यूज होगा। कौन सा रिजल्ट यूज होगा, वेरी सिंपल, कौन सा रिजल्ट यूज होगा, ये फंक्शन कौन से टाइप का है पहले ये देख लो आप लोग। ये फंक्शन है वेरिएबल रेज टू वेरिएबल, दिख रहा है यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये पूरा x में है और यहाँ पे पावर जो है वो भी x में है। तो अगर बेस पूरा x में है और पावर भी x में है तो सिर्फ एक ही रिजल्ट है जो कि ऐसा है, और वो कौन सा रिजल्ट है, 1 + x raised to 1/x when x tends to 0 the limit is equal to e।
सिर्फ एक ही ऐसा फंक्शन है। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, तो अब मैं ये फंक्शन, अब मैं ये वाला, सिर्फ एक ही ऐसा रिजल्ट है जो भी मैंने बताया, सिर्फ एक यही रिजल्ट है जो यहाँ पे यूज हो सकता है, तो अब मैं वो रिजल्ट यूज करूंगा। ठीक है, ये रिजल्ट यूज करने के लिए जैसा कि मैंने बोला, मुझे पहले 1 मिलना चाहिए। यहाँ पे देखो ये 1 होना चाहिए, 1 प्लस समथिंग। अच्छा 1 प्लस तो दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मेरे को क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। 5 ऊपर भी 5 दिख रहा है, नीचे भी 5 दिख रहा है। तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 दिख रहा था, 3 प्लस 5x और 3 माइनस 2x था ना यहाँ पे 3, तो मैंने क्या किया, 3 कॉमन लिया। तो वैसे यहाँ पे आप क्या करोगे, आप 5 कॉमन लोगे। तो ये 5 कॉमन लोगे आप, और उसके बाद में जो जो आपने यहाँ पे किया है वो आपको करना है। अब मैं आपको टाइम देता हूँ 5 मिनट का, आपको ये प्रॉब्लम कंप्लीट करना है, और 5 मिनट बाद फिर से मिलेंगे। ओके, स्टार्ट। Okay, students, I hope you all must have solved this problem, and the answer for this is e raised to 2 by 3. What's the answer? The answer is e raised to 2 by 3. आपको सबको ये आंसर मिलना चाहिए। Okay, I will write few more problems for your practice, and those problems also you can do on same line. Let me write few more problems here. So we have done the second and sixth, sorry, the third and sixth problem we have done. Now look at this question, number second. In second it is evaluate limit x tends to 0, 3 plus x upon 3 minus x raised to 1 upon x. It's going to be once again same as this. As you solve this, you will be able to solve this. Okay, what you will do, you will first take 3 common. So when you take 3 common, I will write few steps for this. See, when you take 3 common, you will get 1 plus x by 3, and down here you will get 3 common, so you will get 1 minus x by 3, and then this 3 cancels, the complete power is 1 upon x. Then you will write separate power for this and this, right? You will write separate power. So this 1 upon x you will write here. Then the power will be separated, 1 upon x and 1 upon x. Now, if this is x by 3, this should be 3 by x. And this is negative sign here. So you'll write plus of minus. And if this is minus x by 3, this should be 3 upon minus x. So what you will do, see, this is x by 3. So you want 3 by x. For that, you will multiply 3 here. So you will divide by 3. See, you are writing 3, you are multiplying 3 here. Why? Because you want 3 by x. इसका रेसिप्रोकल चाहिए ना, तो तुम यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई करोगे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें चाहिए 3 अपॉन माइनस एक्स, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन 3 करना पड़ेगा, और माइनस एक्स लिखोगे तो इधर माइनस करना पड़ेगा। देखो अब ये हो गया तुम्हारा e, यू गेटिंग, ये हो गया तुम्हारा e, और यहाँ पे ये हो गया e. So the final answer is e raised to 1 by 3, e raised to minus 1 by 3, that is e raised to 2 by 3. इसका आंसर क्या मिलेगा, e raised to 2 by 3 इसका आंसर होगा। इसका भी आंसर e raised to 2 by 3, ये भी आप कर लेना। सेम वे आप सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम नंबर 5. So we have done second, we have done third and sixth. Now fifth is limit x tends to 0, limit x tends to 0, 4x plus 1 upon 1 minus 4x raised to 1 upon x. तो इसको पहले क्या करोगे, ये 4x plus 1 है, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको आप क्या करोगे, पहले 1 plus 4x लिखोगे, ठीक है। इसको आप लिखोगे 1 plus 4x, 1 plus 4x, फिर क्या करोगे, इसका आप सेपरेट पार लिखोगे,
power in numerator and in denominator. So limit x tends to 0, you will get 1 plus 4x raised to 1 upon x. अच्छा देखो यहाँ पे 1 ऑलरेडी है. देखो यहाँ पे कैसे था, 3 था, तो हमें 3 कॉमन लेना पड़ा so that we get 1. ये 1 नहीं था ना, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 है, तो कोई टेंशन ही नहीं है. तो यहाँ पे डायरेक्ट पावर सेपरेट कर देंगे. देखो ऊपर भी 1 है और नीचे भी 1 है, तो सीधा पावर सेपरेट कर देंगे. ओके, सो 1 plus 4x raised to 1 upon x and 1 minus 4x raised to 1 upon x. ठीक है, तो ये 1 माइनस है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अपने को लिखना पड़ेगा, इसको अपने को लिखना पड़ेगा प्लस ऑफ माइनस. ठीक है ना, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, इसको मैं लिखूंगा प्लस ऑफ माइनस. ये होगा. अब देखो यहाँ पे 1 plus 4x है, तो पावर क्या होना चाहिए, 1 upon 4x. तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई करो तो यहाँ करना पड़ेगा. ये 1 plus minus 4x है, तो यहाँ पे तुम्हें -4 लिखना पड़ेगा, तो ऊपर भी -4 मल्टीप्लाई करो और फिर ये e हो जाएगा और यहाँ पे ये वाला पार्ट e हो जाएगा. ओके, क्या किया आपने, यहाँ पे -4x है, तो आपको यहाँ पे 1 upon -4x चाहिए. तो ये क्या किया आपने, यहाँ पे आपने -4x इसके साथ मल्टीप्लाई किया x के साथ, तो आपको न्यूमरेटर में माइनस यहाँ पे अब क्या होगा, अब ये वाला पार्ट. अच्छा, ये लिमिट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मैंने नहीं लिखा है, आप लोगों को लिखना पड़ेगा. सो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा e, दिस इज e and this is also e. So the final answer will be e raised to 4, e raised to 4 and e raised to -4. So final answer is e raised to 8. फाइनल आंसर क्या मिला है, e raised to 8 मिला है फाइनल आंसर. ओके, ये भी हो जाएगा. ओके, सो लेट्स सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 7.6 second. The first sub question is evaluate limit x tends to 0, 3 raised to x plus 3 raised to minus x minus 2 upon x tan x. As you know, what I need to do is, जब x 0 के पास जा रहा है, मुझे बताना है ये फंक्शन ऑफ x कौन से नंबर के पास जा रहा है. तो वेरी सिंपल, x 0 के पास जा रहा है, तो ये जाएगा 3 raised to 0 मतलब 1 के पास, ये जाएगा 0 तो वापस 3 raised to 0 1 के पास, और बाजू में क्या है, -2 है, तो क्या हो गया, 1 plus 1 2, 2 के पास -2, सो इट इज गोइंग 0 के पास. नीचे देखो, x 0 के पास जा रहा है, तो ये 0 हो गया और ये भी tan 0 0 हो गया, 0 into 0 0 के पास क्या मिला, 0/0 मिल रहा है. 0/0 इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, मुझे या तो 0 रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कैंसिल करना पड़ेगा और नहीं तो मुझे रिजल्ट यूज करना पड़ेगा. कौन सा रिजल्ट, देखो अब यहाँ पे फैक्टर कैंसिल नहीं होगा. क्यों, एकदम से सीधी सी सिंपल सी बात है कि जो डिनोमिनेटर में है 0 के लिए रिस्पॉन्सिबल, वो x और tan x है. ये क्या है, ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, और ऊपर क्या है, ऊपर एक्सपोनेंशियल है. तो आप एक्सपोनेंशियल को ट्रिगो में कन्वर्ट करो या ट्रिगो को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो, ये काफी डिफिकल्ट काम है फॉर नाउ. तो देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट l इक्वल्स टू, अच्छा देखो अब यहाँ पे tan x है, tan x है, तो tan x के लिए रिजल्ट क्या है, tan x upon x when x tends to 0 the limit is equal to 1. तो अगर मैंने यहाँ पे tan x देख लिया तो मैं समझ गया कि मुझे एक x चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना. लेकिन tan x के बाजू में ऑलरेडी एक x है, तो एक x से काम नहीं चलेगा. ओके, अगर मैं सिर्फ सिंगल x से डिवाइड करता हूं, अगर मैं सिर्फ एक सिंगल x से डिवाइड करता हूं तो क्या होगा, tan x अपॉन x ये तो 1 हो जाएगा क्योंकि x टेंड्स टू 0 है, लेकिन यहाँ पे बाजू में एक x और है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा. तो मैं क्या करूंगा, मैं x से नहीं डिवाइड करता हूं, मैं x स्क्वायर से डिवाइड करूंगा. तो x स्क्वायर से डिवाइड करने से क्या होगा, तो देखो एक x कैंसिल हो जाएगा और एक tan x अपॉन x बचेगा और ये 1 हो जाएगा. ठीक है, तो देखो मुझे एकदम से बिगनिंग में ही पता चल गया, क्या पता चल गया,
मुझे पता चल गया कि मुझे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, मुझे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, ये मुझे बिगनिंग में ही पता चल गया। एक्स tan x देख के मुझे पता चल गया मुझे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो डेफिनेटली मुझे न्यूमरेटर को भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, लेकिन ये जो न्यूमरेटर है ये न्यूमरेटर फ्रेंडली नहीं है। द न्यूमरेटर इज नॉट फ्रेंडली राइट नाउ। इसको थोड़ा सा अच्छे से सिंप्लीफाई करके इसको थोड़ा सा फ्रेंडली बनाते हैं। ठीक है, तो देखो मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0, ओके, 3 raised to x plus 1 upon 3 raised to x. It is 3 raised to minus x, so I'll write 1 upon 3 raised to x minus 2 upon x tan x. ठीक है, और अब मैं यहाँ पे LCM लूंगा, so I will get limit x tends to 0, x tends to 0, x tan x, और यहाँ पे मैंने क्या लिया, 3 raised to x कॉमन लिया मैंने, तो मुझे क्या मिलेगा 3 raised to x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू 3 raised to x। और अब क्या करूंगा, ये 3 raised to x डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, करेक्ट। सो नेक्स्ट स्टेप में मुझे मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट therefore L equals to limit x tends to 0, x tends to 0 and x into tan x into 3 raised to x, x into tan x into 3 raised to x, और यहाँ पे मुझे मिलेगा 3 raised to x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 raised to x, ये वाला टर्म मैंने पहले लिखा, प्लस 1। ओके, अभी देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कैन आई राइट इंटू 1, ये जो टर्म है इसमें 1 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यस डेफिनेटली, क्यों, 1 मल्टीप्लाई करने से वैल्यू चेंज होगा नहीं। अच्छा, ये जो 1 है इसको मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ, डेफिनेटली यस, क्यों, 1 स्क्वायर भी 1 होता है। लेकिन इतना करने से हुआ क्या, देखो therefore L equals to limit x tends to 0, x tends to 0, ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा a स्क्वायर, ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा a स्क्वायर, ओके, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, a माइनस b तो होल स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा 3 raised to x minus 1 तो होल स्क्वायर, x tan x, ठीक है, और यहाँ पे क्या मिला तुम्हें, 3 raised to x मिला। अब देखो ये डिनोमिनेटर में एक फैक्टर आ गया है 3 raised to x, पहले नहीं था, देखो यहाँ पे x tan x था, देखो ये x tan x था, ये 0 के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ये x tan x 0 के लिए रिस्पॉन्सिबल, ये x tan x 0 के लिए रिस्पॉन्सिबल, ये भी है 0 के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब क्या हो गया है, यहाँ पे एक फैक्टर ये आ गया है, इसके लिए अपने को सोचना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर ये 0 के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो ये इसको भी अपने को ध्यान देना पड़ेगा, इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। जैसे तुमने यहाँ पे x और tan x दोनों भी 0 के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अरे भाई x 0 के पास जा रहा है तो दोनों, ये भी 0 के पास जा रहा है, ये भी 0 के पास जा रहा है, तो आपने दोनों के बारे में सोचा ना, आपने बोला ना x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक x कैंसिल होगा और ये tan x अपॉन x 1 होगा। तो अब कैसा है, अब साथ में 3 raised to x आ गया है, लेकिन कोई डरने की बात नहीं है, क्यों, क्योंकि जब x 0 के पास जाएगा तो ये किधर जाएगा, 3 raised to 0 बोले तो 1 के पास, किधर जाएगा, 1 के पास जाएगा। ओके, अब देखो, अब मैं लिखूंगा, अब मैं बराबर लिखूंगा, देखो यहाँ पे सिंस x टेंड्स टू 0, अब अपना न्यूमरेटर देखो फ्रेंडली हो गया, न्यूमरेटर अपना फ्रेंडली हो गया, क्यों फ्रेंडली हो गया, क्योंकि वो रिजल्ट के फॉर्म में दिख रहा है, रिजल्ट याद है ना सबको, कौन सा रिजल्ट, a raised to x minus 1 upon x when x tends to 0 the limit value is equal to 1, sorry not 1, it is equal to log of a, okay, so here I am getting a raised to x minus 1, a raised to x minus 1 upon x। अब देखो ये 3 raised to x minus 1 है और उसका स्क्वायर है, अगर 3 raised to x minus 1 होगा तो सिर्फ एक x चाहिए, अरे भाई जो यहाँ पावर है वो डिनोमिनेटर में चाहिए ना,
यस, तो अगर सिर्फ x होता 3⁻⁻⁻⁻⁻ तो x चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, तो मतलब न्यूमरेटर को भी x स्क्वायर की जरूरत है। ओके, और डिनोमिनेटर में तो x स्क्वायर चाहिए, ये मुझे पहले ही समझ गया था। ओके, तो देखो अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, सिंस x टेंड्स टू 0 देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर विल बी नॉट 0, देयरफॉर dividing numerator and denominator by x square, numerator denominator को x square से डिवाइड करो, तो क्या मिलेगा, लिमिट x tends to 0 and you will get 3 raised to x minus 1 square upon x square, यहाँ पे मिलेगा x tan x upon x square and 3 raised to x। अब देखो क्या होगा, ये वाला एक x गया, ये x गया। ओके, सो और यहाँ पे मैं इसको कॉमन स्क्वायर लिखूंगा। सो नेक्स्ट स्टेप इज therefore L equals to limit x tends to 0 3 raised to x minus 1 upon x the whole square, 3 raised to x minus 1 upon x the whole square, ये है tan x upon x, this is tan of x upon x, and here I will write 3 raised to x. Now I'll write limit for all, so therefore L is equal to, सब जगह लिमिट लिख दो, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 3 raised to x minus 1 upon x the whole square, फिर यहाँ पे भी लिख दो लिमिट x टेंड्स टू 0 tan of x upon x, और यहाँ पे भी लिख दो लिमिट x टेंड्स टू 0 3 raised to x, तो ये क्या हो जाएगा, therefore L equals to, ये हो गया log 3, this is log of 3 the whole square upon 1 into 1, ये भी 3 raised to 0 है ना, 3 raised to 0, 3 raised to 0 will be 1, so the final answer is log 3 the whole square। okay, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा which result you are using, यहाँ पे आप लिखेंगे using limit alpha tends to 0 a raised to alpha minus 1 upon alpha equals to log a, and limit theta tends to 0 tan of theta upon theta equals to 1। I hope you all have followed this. See this again, watch this whole thing again, understand and solve this. Okay students, now we will take the only problem left from second is number 4, and the fourth question here is from second, fourth is to evaluate, we have to evaluate limit x tends to 0, here we have log of 3 minus x minus log of 3 plus x and the whole upon x. Okay, so we have to evaluate the limit of this function. Now check this out. You know, this is when you know the meaning of evaluation of a limit. When x is approaching 0, what number is this function approaching? And I am sure that it is approaching some indeterminate form. You can check when x is going 0, तो ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट 3 के पास जाएगा, तो मतलब ये पूरा log 3 के पास, और जब ये x 0 के पास जाएगा तो ये ब्रैकेट वापस 3 के पास, तो ये पूरा log 3 के पास, log 3 minus log 3 0 के पास, और नीचे x है वो भी 0 के पास। तो आपको आंसर ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, और ऐसे तो आंसर छोड़ सकते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि फिर वो गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इवैल्यूएट करेंगे रिजल्ट यूज करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये log फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है। बिफोर आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम आई वांट टू टीच यू समथिंग फ्रॉम द थियरी ऑफ लिमिट्स, कुछ मुझे थियरी ऑफ लिमिट्स में से सिखाना है। देखो जैसे कि अगर समझो मेरे पास में है log ऑफ x है, और यहाँ पे है मेरे पास में
log x टू द बेस 4 है, ठीक है, log x टू द बेस 4 है, और मुझे लिमिट x टेंड्स टू 4 दिया है। x क्या है, 4 के पास जा रहा है। अगर मेरे पास में log x टू द बेस 4 है और x 4 के पास जा रहा है और मुझे इसका लिमिट इवेल्युएट करना है, तो मैं क्या करूंगा? सीधी सी बात है, अगर x 4 के पास जा रहा है तो मुझे बताना है log x टू द बेस 4 कौन से नंबर के पास जा रहा है। तो देखो, अगर x 4 के पास जा रहा है मतलब ये वाला इधर ये 4 के पास जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा log ऑफ 4 के पास टू द बेस 4। तुम्हें मालूम है अगर log किसी नंबर का और बेस दोनों सेम होता है, log 4 टू द बेस 4 क्या होगा? 1 होगा। तो अगर ये 4 है तो log 4 टू द बेस 4 1 होगा, लेकिन यहाँ पे तो ये 4 नहीं है, ये 4 के पास है। तो क्योंकि ये 4 के पास है तो ये आंसर कहाँ जाएगा? ये 1 के पास जाएगा, ठीक है ना? ये क्या आ रहा है? आंसर 1 के पास आ रहा है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये 1 के पास, तो ये याद रखना कि इधर 1 मिला है आपको। अब मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, देखो अब मैं क्या करूँ। अब मैं लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 4x, लिमिट x टेंड्स टू 4x, और इसका मैं log लेता हूँ। क्या लेता हूँ मैं? log। देखो पहले क्या था, पहले log x था और लिमिट बाहर था, और अब क्या किया हमने? अब हम लोग ने लिमिट ऑफ x लिया है और log बाहर है, लिमिट ऑफ x लिया है और log बाहर है। बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। कहने का मतलब पहले भी फंक्शन x था और अभी भी फंक्शन x ही है, ठीक है? तो देखो अब इसको देखते हैं इसका आंसर क्या मिलेगा। अच्छा ये बेस 4 है, यहाँ पे बेस 4 है। देखो जब x 4 के पास जाएगा तो ये 4 के पास जाएगा, ठीक है ना? तो मुझे क्या मिलेगा? ब्रैकेट के अंदर मुझे मिलेगा 4 के पास, ओके। और यहाँ पे क्या है? ये है log विथ बेस 4। अब बताओ log ऑफ समथिंग विच इज गोइंग क्लोज टू 4 टू द बेस 4 क्या होगा? वापस 1, वापस 1 के पास। तो क्या मिला? जो आंसर यहाँ मिल रहा था आपको 1, यहाँ पे भी 1 मिल रहा था और यहाँ पे भी 1, तो मतलब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि मैं बोलना चाहता हूँ। देखो अगर अगर आपके पास में लिमिट लिमिट log f of x है, लिमिट x टेंड्स टू a log f of x, आपके पास में क्या है? लिमिट x टेंड्स टू a log f of x। बेस कुछ भी होने दो, बेस यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं मैं, बेस कुछ भी हो सकता है। सो लिमिट log f of x x टेंड्स टू a है, तो इसको आप log बाहर और लिमिट अंदर लिख सकते हो। मतलब इसको आप लिख सकते हो लिमिट f of x x टेंड्स टू a, और ये पूरे का log, वो दोनों एक ही है, दोनों इक्वल है। ये और ये दोनों इक्वल है, रिमेंबर, ये और ये दोनों भी इक्वल है, ये और ये दोनों भी इक्वल है। लिमिट of log f of x, limit x tends to a of log f of x is same as log of limit x tends to a f of x, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे यूज करना है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। देखो ये मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये डिनोमिनेटर में x है, और यहाँ पे देखो log m माइनस log n, तो क्या हो गया? log m अपॉन n, तो हो जाएगा log ऑफ 3 माइनस x अपॉन 3 प्लस x, ओके।
देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको मालूम है अगर a अपॉन b है तो मैं उसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन b इंटू a, एक ही बात है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 अपॉन x इंटू लॉग ऑफ 3 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स। ये 1 अपॉन एक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लॉ ऑफ लोगारिथम यूज करूंगा। जैसे मुझे मालूम है अगर m log n है तो उसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ n रेज टू m। तो यहाँ पे देखो ये 1 अपॉन एक्स जो है अब ये पावर में चला जाएगा, राइट। तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 log 3 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स रेज टू 1 अपॉन एक्स। ठीक है, और इसके बाद में मैं यूज करूंगा वो कॉन्सेप्ट जो कि अभी मैंने आपको सिखाया, जस्ट नाउ मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया, मैं वो कॉन्सेप्ट यूज करूंगा यहाँ पे। देखो मैं क्या लिखता हूँ वी नो दैट लिमिट ऑफ लिमिट एक्सटेंड्स टू a log f of x is same as log बाहर ले लो log of limit extends to a f of x. So here we will get therefore L equals to, ये मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा L equals to, तो देखो क्या होगा, मेरे पास क्या है अभी, मेरे पास अभी है, अभी मेरे पास है ये देखो ये f of x है, ये f of x है, ये f of x है, ये f of x है। तो मेरे पास अभी क्या है, अभी मेरे पास है लिमिट ऑफ log f of x। मैं क्या करूंगा, log बाहर और लिमिट अंदर। सो सी L इक्वल्स टू log of limit extends to 0 3 minus x upon 3 plus x raised to 1 upon x। ओके, और अब आपको मालूम है कि ये कैसे सॉल्व करना है, ये कैसे सॉल्व करना है ये आपको ऑलरेडी से मालूम है। क्या करना है, इसको 3 को कॉमन लेना है। ओके, तो फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे लिखूंगा, बस जैसे सॉल्व करना है वैसे ही सॉल्व करना है और लॉग बाहर लिखते जाना है। ये तो आपने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ ही है। आपका प्रॉब्लम नंबर सेकंड जो है, सेकंड में सेकंड एकदम ऐसा ही है, सिर्फ ऊपर माइनस की जगह प्लस है और नीचे प्लस की जगह माइनस है। ओके, तो ये हम लोग अभी यहाँ पे देखो लॉग ऑफ लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 और मैं क्या करता हूँ 3 कॉमन लेता हूँ, तो मुझे मिलेगा 1 माइनस एक्स बाई 3, 1 माइनस एक्स बाई 3 और यहाँ पे भी 3 कॉमन ले लिया तो मुझे मिला 1 प्लस एक्स बाई 3 एंड होल रेज टू 1 बाई एक्स। अब क्या होगा, ये 3 और ये 3 गया। अब मैं क्या करूंगा, ये पावर दोनों को दे दूंगा मैं, ये लॉग को बाहर वैसे ही रहने दो, लॉग को बाहर वैसे ही रहने दो। ओके, अभी ये पावर 1 बाई एक्स दोनों को सेपरेट करूंगा मैं। सो देयरफॉर L इज इक्वल टू log of limit extends to 0 1 minus x by 3, 1 minus x by 3 raised to 1 by x, okay, and 1 plus x by 3 raised to 1 by x, and अभी देखो यहाँ पे माइनस है तो इस माइनस को क्या करना पड़ेगा, प्लस ऑफ माइनस करना पड़ेगा। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप में देखो, सबको मालूम है अगर अगर 1 प्लस प्लस के बाद में वेरिएबल अगर माइनस एक्स बाई 3 है, अगर ये माइनस एक्स बाई 3 है, ये माइनस एक्स बाई 3 है, तो पावर क्या होना चाहिए, पावर होना चाहिए 3 अपॉन माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, देखो कैसे। नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखता हूँ लॉग
और लिमिट दोनों को लिख दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस माइनस एक्स बाई 3, ओके, रेज टू 1 अपॉन एक्स है ना, तो 1 अपॉन एक्स को देखो, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ 3 मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ 1/3 हो गया, और फिर यहाँ पे मैं माइनस एक्स लिखता हूँ तो मैं यहाँ पे माइनस लिखता हूँ, बराबर हो गया। डिनोमिनेटर में देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे 1 प्लस एक्स बाई 3 है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ 1 अपॉन एक्स है ये, तो 1 अपॉन एक्स इधर है, मैं इसको लिखता हूँ 3, तो 3/x हो गया, और 3 लिखा तो यहाँ पे 1/3 लिखना पड़ेगा। अब क्या, अब देखो, अब ये जो है पूरा ये हो गया e, और यहाँ पे ये हो गया e, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, अच्छा ये जो है ये x, कौन सा रिजल्ट यूज कर रहे हैं आप रिजल्ट कौन सा यूज कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो 1 प्लस अल्फा रेज टू 1 अपॉन अल्फा, अल्फा टेंड्स टू 0 लिमिट इक्वल्स टू e, मतलब जो प्लस साइन के बाद है वो 0 के पास जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस साइन के बाद क्या है, प्लस साइन के बाद में यहाँ पर है माइनस एक्स बाई, लेकिन उन्होंने क्या दिया है, x टेंड्स टू 0, तो मुझे लिखना पड़ेगा, मुझे इसको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, देखो मुझे लिखना पड़ेगा since x tends to 0 therefore ये माइनस एक्स बाई 3 टेंड्स टू 0 एंड नीचे x by 3 tends to 0, therefore using which result, limit alpha tends to 0 1 plus alpha raised to 1 upon alpha equals to e, we get, देखो क्या होगा, ये पूरा e है, ये पूरा e है, ये पूरा e है, ये e हो गया, और यहाँ पे ये e हो गया, तो देखो क्या मिलेगा अपने को, वी गेट l इक्वल्स टू, बाहर लॉग है और अंदर क्या है, e रेज टू माइनस 1/3, e रेज टू माइनस 1/3, ये तो पावर में है ना, तो ये पावर में ही रहेगा, e रेज टू माइनस 1/3, और यहाँ पे मिलेगा e रेज टू 1/3, तो क्या हो गया, ये हो गया log ऑफ e रेज टू माइनस 1/3 इंटू e रेज टू माइनस 1/3, ये वाला भी ऊपर ले लो, तो हो जाएगा l इक्वल्स टू log ऑफ e रेज टू, ये पावर दोनों ऐड हो जाएगा, तो e रेज टू माइनस 2/3, ठीक है। अब ये माइनस 2/3 यहाँ पे आ जाएगा, पावर जो है कोएफिशिएंट बन जाता है, तो माइनस 2/3 लॉग ऑफ ई, लॉग ई, और बेस तो पहले से ई है, वो तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, लिखते नहीं है लेकिन वो बेस ई होता है, तो फाइनल आंसर लॉग ई टू द बेस ई 1 होता है, माइनस 2/3 इज द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या है बच्चों, फाइनल आंसर है माइनस 2/3, भूलना मत, ओके। आई होप सबको समझ में आ गया होगा।